نمل۔ اگلی فجر ابھی تاریک تھی جب جواہرات کی آنکھ کھلی۔ وہ سیدھی اٹھ بیٹھی، گردن موڑ کر دیکھا۔ اورنگزیب کروٹ لیے سو رہے تھے۔ دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا، جھک کر سلیپر پہنے اور کھڑکی تک گئی۔ باہر سیاہی تھی، روشنی سے ذرا پہلے کا اندھیرا۔ عجیب گھٹن تھی، فضا میں جیسے کوئی تعفن زدہ لاش کسی نے بیچ چوراہے پہ رکھی ہو اور اس کی نتنوں میں گھس رہی ہو۔ جواہرات کی خوبصورت آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ گاؤن پہنا اور ڈوری کو گرہ لگاتی باہر نکل آئی۔ لاؤنج تاریک تھا، بتیاں آٹو مکینک تھیں۔ وہ جس جگہ داخل ہوتی وہاں بتی جل اٹھتی۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھے، بتیاں جلتی گئیں۔ وہ ڈائننگ ہال تک آئی، آگے نکل گئی، بتیاں ساتھ ساتھ بجھتی گئیں، اگلی جلتی گئیں۔ ڈائننگ ہال سے پرے ایک اور راہداری تھی، اس کے آگے ایک کمرے کا دروازہ بند تھا، نیچے در سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ کنٹرول روم تھا۔ جواہرات اچنبھے سے رکی، آہستہ سے قریب آئی۔ ساؤنڈ پروف دروازوں سے سننا ناممکن تھا۔ اس نے ہینڈل پکڑ کر گھمایا، دروازہ کھلتا گیا۔ ہاشم مضطرب سا ٹہلتا غصے سے کچھ کہہ رہا تھا اور خاور سامنے کھڑا سر جھکائے سن رہا تھا۔ میں نے کیا بکواس کی تھی؟ اس کو خودکشی لگنا۔ ماں کو دیکھ کر وہ رکا، مگر تاثرات نہیں بدلے۔ قریب آیا، کہنی سے پکڑ کر حیران و پریشان جواہرات کو اندر کیا، دروازہ بند کر کے لاک کیا، کرسی کھینچ کر کہا بیٹھیں۔ وہ نہیں بیٹھی، سنگینی محسوس کر کے بے چینی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ ہاشم، کچھ غلط ہے نا؟ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ وارث واحد شخص تھا جس کے پاس ہمارے خلاف ثبوت تھے۔ میں نے خاور کو اوکے کر دیا، خاور نے اسے مار دیا ہے، اور یہ رہے سارے ڈاکومنٹس، اس کی فائلز، اس کا لیپ ٹاپ۔ اشارہ کیا ان پرزوں کی طرف۔ جواہرات بے دم سی ہو کر کرسی پہ گر گئی، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ خاور تفصیلات بتاتا رہا۔ آخر میں اس نے جھکے سر کو اٹھایا، گلابی بڑھتی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا۔ کیا اس کی جان لینا ضروری تھا؟ کیا اب ہم قاتل بھی ہو گئے ہیں؟ اپنے خاندان کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں۔ بہرحال اب یہ سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے خودکشی کر لی، بات ختم، ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ اس کی حیرانی پر ہاشم نے گھور کر خاور کو دیکھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ خودکشی کب لگے گی وہ؟ اس نے اس کے ہاتھ باندھے، اس کے سر پر چوٹ لگائی، کمر پہ جوتا رکھا۔ مزاحمت کے سارے رائی جیسے نشان پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پہاڑ بن کر نظر آئیں گے۔ تفتیشی افسر، پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر، اور کتنوں کا منہ بند کرنا پڑے گا۔ یہ خودکشی نہیں لگے گی۔ جواہرات اٹھ کھڑی ہوئی، بے چینی سے پھرتی رہی، پھر چونک کر ہاشم کو دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، یہ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکو آئے، سامان لوٹا اور بندے کو مار دیا۔ اس نے چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو خاور ساتھ لایا تھا۔ آسان نہیں ہوگا، فارس کبھی اتنے پہ نہیں بیٹھے گا۔ ہاشم بے چینی سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ سب خراب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ہاشم، ڈونٹ وری، تم قتل کے وقت پارٹی میں تھے، تمہارے پاس ایلیبی ہے۔ جواہرات اپنی بات پہ خود ہی چونکی۔ ہاشم نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ خاور نے بھی بے اختیار سر اٹھایا۔ ایلیبائی؟ ہاشم کسی سوچ میں بھٹک گیا۔ یعنی کسی شخص کا جرم کے وقت کسی دوسری جگہ پہ موجودگی کی شہادت ہونا۔ مگر جواہرات تیزی سے اس کے قریب آئی، اس کی آنکھیں امید سے چمکنے لگیں۔ فارس پارٹی میں نہیں تھا، وہ وارث کی واپسی کے بعد ہی آیا تھا۔ اس دوران وہ جا کر قتل کر سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے۔ خاور کے یہاں ہونے کے گواہ ہم دونوں ہوں گے، اور ہاشم کی گواہی تو سارے مہمان دیں گے۔ فارس، وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ فارس پارٹی میں نہیں تھا، فارس سوتیلا بائی ہے، فارس قاتل ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ سب فارس پہ پلانٹ کرنا ہے۔ جواہرات نے آگے آ کر دائیں بائیں ترتیب سے لگی چیزوں کو دیکھا۔
रस्सियाँ प्लास्टिक बैग में थीं। इस पे वारिस का डीएनए होगा। ये सब अगर पुलिस को फारिस के घर से मिले तो उसे अपनी पड़ जाएगी, वो केस के पीछे ही नहीं पड़ेगा। हाशिम तज़्ज़ब से सुनता रहा, जो उसे उसकी माँ चमकती आंखों के साथ बता रही थी। फजर क़ज़ा हो चुकी थी। सुबह तुलू होने लगी। फारिस चाबी उंगली में घुमाता हुआ हॉस्टल की इमारत के अहाते में आगे बढ़ रहा था। मुंह में गम चबाते वो किसी गहरी सोच में था। आज इतवार की सुबह थी। खामोशी छाई थी। वो चलता गया, फिर बरामदे में रुका। वारिस के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। एक दफ़ा, दो दफ़ा, 100 बार। फिर मोबाइल निकाला, कॉल मिलाई। फ़ोन ऑफ था। उसने फिर मिलाया। साथ वाले कमरे से एक ऑफिसर निकल रहा था। फारिस ने उसे रोका। वारिस का पूछा। वो फारिस को जानता था। हाँ, वो अंदर होगा। रात को आ गया था, फिर बाहर नहीं निकला। फारिस ने अब के दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। वो नौजवान भी साथ ही खड़ा हो गया। चंद लम्हे वो खड़े रहे। वारिस, वारिस, दरवाज़ा खोलो। वो कदरे फिक्रमंदी से दरवाज़ा धड़धड़ाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता 2-4 मज़ीद लोग इकट्ठे हो गए। फारिस ने सारा को कॉल की। सारा, वारिस कहाँ है? उसे अपनी आवाज़ घबराई हुई सुनाई दे रही थी। मेरी बात नहीं हुई रात से, अभी उठी हूँ, कॉल करने लगी थी। आज हमने फारिस ने बात सुने बगैर फ़ोन जेब में डाला और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े को ठोकर मारने लगा। 2 आदमी आगे बढ़े, ज़ोर से दरवाजे को ठोकरें मारी। लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। तमाशा सा लग गया। तीसरे मिनट में दरवाजे का लॉक टूटा और वो उड़ता हुआ दूसरी तरफ जा लगा। पूरी कुव्वत से फारिस अंदर गिरते गिरते बचा। फिर सीधा हुआ, गर्दन उठाई, तब उसे लगा वो कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकेगा। पंखे के साथ वारिस की लाश झूल रही थी। उसने चीखों पुकार सुनी, मगर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने भागकर सबसे पहले वारिस के पैर पकड़कर ज़रा उठाए। गर्दन की रस्सी ढीली हुई, मगर वो महसूस कर सकता था ये टांगें बहुत सर्द थीं, बेजान। फारिस पीछे हटा, हाथों को फैलाए, सबको पीछे हटने का इशारा किया। कोई किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा, सब पीछे। उसका रंग सफ़ेद पड़ रहा था और वो अंदर दाखिल होने से पहले सबको रोक रहा था। सारा का फ़ोन अभी होल्ड पे था। उसे बहुत से लोगों को खबर देनी थी। कैसे, वो नहीं जानता था। बस जानता था तो एक ही बात, उसे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। सब खत्म हो गया था। कब अश्कों से जुड़ सकता है? जो टूट गया सो छूट गया। 3 दिन बाद सारा की वालदा के घर में सोगवारी छाई हुई थी। वारिस के जनाजे को आज तीसरा दिन गुजर चुका था, मगर वहाँ फैली नादीदा काफूर की महक और मैयत के घर की वीरानी बरकरार थी। साथी अंदर दाखिल हुआ तो बाहर बरामदे की एक कुर्सी पे पैर ऊपर रखे हुनैन बैठी थी। गाल हथेली पे जमाए किसी गैर मरई नुक्ते को देख रही थी। आंसू टप टप गिर रहे थे। साथी के दिल को कुछ हुआ। वो करीब आया। वो हनूस सामने देखती रही। आंसू गिरते रहे। भाई, वो मामू थे। फॉर ग्रांटेड। प्यार करते थे, ख्याल रखते थे, सब फॉर ग्रांटेड था। हमारा हक, अच्छे लगते थे, इज्जत करती थी मैं उनकी। ठीक है, बात ख़त्म, मगर 3 दिन से मैं खुद हैरान हूँ। मुझे आज पता चला है कि मैं तो मामू से बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं उनको इतना मिस करूँगी। मेरा दिल ऐसे दुखेगा। मुझे तो कभी पता ही नहीं था भाई। मुझे उठते बैठते मामू की शक्ल दिखाई देती है। सोते वक्त आखिरी ख्याल, जागते वक्त पहला ख्याल, वारिस मामू। बस उसने भीगी अजनबी निगाहों से सदी को देखा। बस एक दिन चाहिए, सिर्फ एक दफ़ा मुझे मामू से दोबारा मिलना है और उनको बताना है कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। सिर्फ 1 घंटे के लिए। भाई, क्या हम सिर्फ 1 घंटे के लिए भी अपनी ज़िंदगियों को रिवर्स नहीं कर सकते? वो खामोशी से देखता रहा, फिर उठ गया। दिल ऐसे उजड़ा था कि लगता था आगे कुछ बाकी ही नहीं रहा दुनिया में। वो अंदर आया। किचन में नुसरत कुर्सी पर बैठी थी। ज़किया बेगम दूर बैठी आंसू पोंछती तस्बीह पढ़ रही थी।
सादी आकर माँ के साथ खड़ा हुआ, कंधे पे हाथ रखा। नुसरत ने सर उठाकर सुर्ख आंखों से उसे देखा। इर्द गिर्द भरी रिश्तेदार खवातीन को यकसर नज़रअंदाज किए उसने पूछा, सादी, लोग इस तरतीब से क्यों नहीं मरते जिससे वो पैदा होते हैं? ये छोटे पहले क्यों मर जाते हैं? कैसे वापस लाऊं मैं उसे? सादी का दिल भर आया। उसने माँ के कंधे से हाथ उठाया और मुड़ गया। अंदर एक कमरे में बेड पे सारा बैठी थी। उसकी सादी की तरफ पूछती थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई। चौखट पे रुक गया। फिर देखा, बेड साइड टेबल के साथ वारिस की बेटियां खड़ी थीं। अम्मल चुपके चुपके कह रही थी, मेरे बाबा चले गए, अब मैं अपने बाबा को कैसे बुलाऊंगी? अब मुझे नाश्ता कौन कराएगा? नूर फर्श पे चौकड़ी मारकर कोहनियाँ घुटनों पे जमाए गालों पे हाथ रखे बैठी थी। ज़रा सा सोचा, फिर आंखें चमकीं, हाथ गाल से हटाए, सर उठाकर बहन को देखा और चहक कर बोली, कोई बात नहीं, हम बाबा को फ़ोन कर लेंगे, वो हमारा फ़ोन हमेशा उठाते हैं। अमल ने उदासी से उसे देखा और नफ़ी में सर हिला दिया। वो समझती थी, और जो वो समझती थी वो छोटी बहन को नहीं समझा सकती थी। नूर उठी और सारा का मोबाइल उठाकर जल्दी जल्दी बाबा का नंबर मिलाया। फ़ोन कान से लगाया। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश करें। कितनी देर बाद करूं दोबारा सादी भाई? उसने चौखट पर खड़े सादी को पुकारा। सारा सब सुन रही थी। उसके नाम पर गर्दन मोड़ कर देखा। वो सर झुकाकर आगे आया। सारा के सामने ज़मीन पर पंजों के बल बैठा। सारा ने भीगी वीरान आंखों से उसे देखा। उसकी नाक और गाल लाल हो रहे थे। मेरा दिल चाहता है सादी, मैं अपनी तमाम डिग्रियों को कहीं फेंक आऊँ। इतने साल जिनके लिए मैंने ज़ाया कर दिए, वो साल में वारिस के साथ गुजार सकती थी। क्या हम ज़िंदगी को रिवाइंड नहीं कर सकते? सिर्फ एक दिन के लिए, एक साल के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा वक्त, थोड़ी सी ज़्यादा मोहलत सादी। आंखें बंद की, टप टप आंसू चेहरे पे लड़कते गए। हाला, उसने झुका सर उठाया, हम ज़रूर उनके कातलों को ढूंढेंगे और उनको सज़ा दिलवाएंगे। उसके दिल की यासियत और उजलापन बढ़ गया था। क्या इससे वारिस वापस आ जाएगा? फिर सारा ने खुद ही नफ़ी में सर हिलाया। सादी लाजवाब हो गया। इस सवाल का जवाब उसके पास तब नहीं था। ये जवाब उसे कई साल बाद मिला था। बालकनी में जवाहरात और हाशिम खड़े थे, दोनों मुस्तरब मगर बज़ाहिर सुकून से दूर नेक्सी की तरफ देख रहे थे, जिसके बरामदे में पुलिस के चंद एहलकारों के साथ फारिस खड़ा कोई क्ल्यू दे रहा था। वो मुसलसल भवें सगेड़े कुछ कहे जा रहा था और ऑफिसर सुन रहा था। तुम्हें वो चीज़ें उसकी गाड़ी के बजाय घर में प्लांट करवानी चाहिए थीं। जवाहरात नागवारी से सामने देखने लगी। हाशिम ने हल्का सा नफ़ी में सर हिलाया। क्यों भूल जाती हैं कि इसका घर हमारी चारदीवारी के अंदर आता है? क्या सोचेगा कि जब कोई बाहर से अंदर सिक्योरिटी से गुजरे बगैर नहीं आ सकता तो उसके घर तक कैसे पहुंच सकता है? गाड़ी तो पूरे शहर में घूमती है, मगर जवाहरात का इस्तराब कम नहीं हुआ था। क्या अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी? नहीं, लेकिन अगर उसने खुदकुशी नहीं कत्ल की रट न छोड़ी तो करना पड़ेगा। जवाहरात ताज्जुब से उसकी तरफ घूमी। तो ये सब क्या है? ये तलाशी वगैरह? सिर्फ एक वार्निंग। हाशिम हल्का सा मुस्कुराया, फीकी मुस्कुराहट। जवाहरात कदरे मुस्तरब सी वापस इधर देखने लगी जहाँ फारिस बरामदे में खड़ा था। यहाँ तक आवाज़ नहीं आती थी। वो सिर्फ उसकी हरकत व सकनात से अंदाज़ा कर रही थी। झूठ बोल रही है वो साइकेट्रिस्ट। फारिस बमुश्किल जब्त करके घुर्राया। पुलिस ऑफिसर खामोशी से सुनता गया। वारिस न कभी उसके पास गया था, न वो कभी एंटी डिप्रेशन दवाएं लेता था। ये सब बकवास है। ये एक कत्ल है और आपको उसकी तफ्तीश करना होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक। भांजी की दोस्त कौन है और कहाँ रहती है? वो जहन में एक नया लाए अमल तरतीब देते हुए पूछने लगा। वो अमेरिकन है, गोरी, होटल में रह रही है। कल मिलवा दूंगा मैडम से उसको। वो नाखुश लग रहा था। क्या नाम है उसका? अलीशा, सदी ने जवाब दिया। वो अब उदास और मुजमहल सा फारिस के पीछे जा रहा था, जो इस सारी कार्रवाई से कतन खुश नहीं लग रहा था। हाशिम लब भींचे बेतासुर निगाहों से उसे जाते देखता गया।
گردن میں گلٹی سی ابھر کر غائب ہوئی۔ اس نے ہلکا سا سر جھٹکا، گویا کہ نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر ذہن میں کچھ کھٹک گیا۔ علیشا، امریکن، ہنی سادی، اس نے اسے پکارا۔ دور جاتا سادی پلٹا، دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ فارس سے کہو مجھے اپنی ایلی بائی کا نام، ہوٹل کا پتہ وغیرہ ٹیکسٹ کرے، میں اس کی کریڈیبلٹی چیک کر لیتا ہوں۔ کورٹ میں ہر زاویے سے اسے جج کیا جائے گا۔ اوکے، سادی مڑ گیا۔ فارس دور جا رہا تھا، وہ اس کے پیچھے چلتا گیا۔ ہاشم وہیں کھڑا ان کو دیکھتا رہا، پھر موبائل نکالا، کال ملائی۔ خاور، کچھ دیر میں ایک عورت کا نام اور ہوٹل کا پتہ ٹیکسٹ کرتا ہوں۔ مجھے اس کے بارے میں اتنی معلومات چاہئیں جتنی اس کی سگی ماں کو بھی نہ ہوں۔ کرختگی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔